First question. Select the group which shares maximum number of common characters. 2 genera of 2 families, 2 species of a genus, 2 genera of a family, 2 individuals of a species. So I am just showing you the answer if you are not writing on the chat. So this is the 2 individual of a species. Again, the next question. This is the crossing of 2 pea plant, one with round seed. So here, this is capital R is the dominating and small y is the recessive, and the another with wrinkled yellow. So the wrinkled is recessive and yellow is dominating. Produce F1 progeny having round yellow seed. So this is the ratio. ये आपके सामने निकला हुआ है. When F1 plants are selfed, the F2 progeny will have the following combination of characters. तो आपको बताना है F1 में तो सब एक जैसे होते हैं, सारे डोमिनेटिंग आएंगे क्योंकि राउंड और येलो मिलेगा. तो आपको ये बताना है कि F2 प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा. 9:3:1. वेरी गुड अर्पित. 9:3:1. वेरी गुड राशि. Good morning, Khushi. So now the next question. Nine is to 3 is to 1. Now the next question. Some dinosaurs have feathered. They could not fly, but birds have feathers. They help them to fly. In the context of evolution, that means that first option, reptiles have evolved from birds. Second option, there is no evolutionary connection between reptiles and birds. Third, feathers are homologous structure in both the organisms. And the fourth, birds have evolved from the reptiles. So here this is the dinosaur had feathers. Okay, let's see. The correct answer, it is D. Birds have evolved from reptiles. हाँ, there is no evolutionary connection between the reptiles and the birds. ठीक है. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मैंने आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बताया है. तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का. सो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ वन पेयर ऑफ सेम एलील with the opposite character. The cross between occurs between the plant showing 2 alternate forms of a trait. जैसे कि हमने tall and dwarf लिया, आपको 2 alternate forms मिले. इसके बाद हमारा next question, what are autosomes and sex chromosomes. सेक्स क्रोमोसोम का सेकेंड नेम है एलोसोम्स. मैंने ये पढ़ाते समय भी बताया था आपको. थैंक यू दीदी. तो एलोसोम्स आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स. Human cell contains 23 pair of chromosomes. Out of 22 are autosomes and rest 1 pair is allosome and sex chromosome which determine the sex of a child. Next question, which of the following scientists give the principle of inheritance. किसने बताया था आपको genetics में the principle of inheritance. Okay, Arpit has given the answer. It is Mendel. Waiting for the chat. Batao. Yes, it is Mendel. Now, which of the following is not correct? Which of the following is not correct? आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है. So first, for every hormone there is gene. For every protein there is gene. For production of every enzyme there is gene, and for every molecule of fat there is gene. Option B. Let's see what is the correct option. Taru, you raised hand.
ओके, यू आर राइटिंग द आंसर, ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। दिस इज ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी जिसने भी बोला है। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज अकर्स जनरली ड्यू टू, कैसे होता है, हमने जो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, तो किस वजह से फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म हो सकता है? सडन क्रिएशन बाय नेचर, accumulation of variations over several generations, या clones formed during asexual reproduction, or the movement of individuals from one habitat to another, किस वजह से हो सकता है? Arpit is giving the answer is D. Let's see what is the correct answer. The correct answer is B, accumulation of variation over several generation. धीरे धीरे वेरिएशन इकट्ठे होते रहते हैं एक ही जनरेशन में और फिर एक साथ वो नेक्स्ट जनरेशन में ब्लास्ट होके आते हैं। Who coined the term gene? तो आई एम गिविंग दिस आंसर कि जीन का वर्ड जीन्स किसने बनाया था? जॉनसन। तो जीन जो वर्ड था वो किसने हमको बताया कि जीन कुछ वर्ड होता है? तो that scientist is Johnson. He discovered this name. He has given this name in 1909. अभी पीछे हमने पढ़ा है recessive genes. Now the question is dominant genes. तो जो dominant genes जो अपने characters को express करते हैं आगे आके, that is the dominant genes. उसके बाद the concept of origin of species by natural selection was given by, natural selection के through किसने बताया था कि origin of species, that is Darwin. Now if round green seeded pea plant is crossed with, I think this question is same, oh different, if round green seeded pea plant, so this is the one trait dominating, is crossed with wrinkled yellow seed, ये है recessive trait. So what will be the produce in F1 progeny? F1 में मैंने आपको बताया था सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर आते हैं, तो इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग दिख रहा है सामने? राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि आपने यहाँ क्या पढ़ा है? राउंड एंड ग्रीन। तो F1 जनरेशन में सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर आते हैं, बट वो मिक्स फॉर्म में आएंगे। मिक्स फॉर्म में कैसे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसीलिए डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है? राउंड एंड कैपिटल रहेंगे तो राउंड रहेगा। हाँ। The genotypic constitution of an organism is called genotype, phenotype, variation और gene. Yes, it is genotype. Write the, ये मैं आपको जब पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, write the scientific name of the plant on which Mendel carried out his experiment. उसने pea plant में ये experiment किया था, but इसका scientific name मैंने बताया था। क्या था इसका scientific name? What is the scientific name? That is Pisum sativum, ठीक है? हाँ, तो Pisum sativum लिखने का जो तरीका होता है, that is capital P, after that small letter and sativum small s. कभी भी ये स्मॉल नहीं होना चाहिए या ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाम होते हैं साइंटिफिक नेम के, that is of two parts, one is the genera and the second is स्पीशीज। तो जेनेरा और स्पीशीज हमको ये बताते हैं, इसलिए हमको उसको वैसे लिखना होता है। जैसे आपने पढ़ा है होमो सैपियंस, तो आप ह्यूमन बीइंग का जब साइंटिफिक नेम लिखते हो तो HOMO, वेयर H इज कैपिटल एंड इन द सेम वे सैपियंस तो वेयर S इज स्मॉल। ये होता क्या है, इसको पहचानते कैसे? ये जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ये अपना रिजेंबलिंग ये करते हैं कि जो कैपिटल P होता है और स्मॉल लेटर सेकंड वर्ड का जो होता है, ये हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर कॉमन नेम का वो साइंटिफिक नेम है। ठीक,
और ये जब आपकी बुक में भी लिखा होगा तो ये थोड़ा इटैलिक फॉर्म में होगा। वैसे तो सारे जनरल एरियल वर्ड्स में होते हैं सारे कुछ, लेकिन जो कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं ना वो होते हैं इटैलिक्स में, और वो या तो ब्रैकेट में होंगे या उसके साइड में स्मॉल डैश करके होंगे। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि दैट इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। इसके बाद हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, कितने ऑटोसोम, तो मैंने अभी बताया ऑटोसोम मतलब सेम क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन स्पर्म, 22, वन पेयर इज रिपीट दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑलरेडी ये बता चुका है ह्यूमन स्पर्म, तो ऑटोसोम उसके पास कितने बचे, 22। Two pink colored flowers on crossing results in one red, two red, one white flower progeny। तो आपको एक कंडीशन दी हुई है कि दो पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस किया गया, देन दे गिव्स अस द 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसमें वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट। तो व्हाट इज दिस क्रॉसिंग कॉल्ड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। So the answer is cross fertilization. A basket of vegetables contain carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent the correct homologous structure? Carrot and potato, carrot and tomato, carrot and radish and potato. पोटैटो होता है इतना पता। आपको पूछना है कि इनमें से कौन सा होमोलोगस स्ट्रक्चर आप मानोगे। होमो मतलब जो दिखता सेम है और फंक्शन उसका दूसरा होता है। सो आपके सामने कैरेट एंड पोटैटो है, कैरेट एंड टोमेटो है, रेडिश एंड कैरेट है, रेडिश एंड पोटैटो है। सो द आंसर इज रेडिश एंड कैरेट। अब मैं तुमको समझा दूं, कैरेट आप बना के भी खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, बट आलू पोटैटो आप लोग वैसे नहीं खाते होंगे, लेकिन जो लोग खाते हैं वो लोग इसको कच्चा नहीं खा सकते, बना के खाते। तो ये डिफरेंस हो गया, दोनों अंडरग्राउंड है। आलू कच्चा नहीं खाते, क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हम लोग कभी वेजिटेबल्स कच्चा बहुत कम खाए हैं, तो हम लोग सारे वेजिटेबल्स को बना के खाते हैं, तो आलू कच्चा नहीं डालते, आलू एज अ सप्लीमेंट इन एवरी वेजिटेबल। कैरेट एंड पोटैटो, टोमेटो आप कच्चा खा सकते हो, बट टोमेटो आपको ऊपर होता है शूट में, नॉट इन द रूट। कैरेट इज अंडरग्राउंड अगेन। रेडिश एंड कैरेट दोनों सेम प्रोसेस से होता है, एंड सेम रेडिश एंड कैरेट विद द कैरेट एंड पोटैटो, ये दोनों भी सेम प्रोसेस में है। तो आपके सामने ऑप्शन इज दिस। मेंडल प्रपोज दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, मेंडल ने क्या बताया था, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 1 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स। उन्होंने क्या बताया था, दैट इज द 2 फैक्टर। उन्होंने ये बोला हर क्रोमोसोम में एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 2 एलील होंगे एक ट्रेट के, ठीक। हर क्रोमोसोम के अंदर ऐसा हो सकता है कि हाइट का हो, बाल का टेक्सचर कैसा है, बाल का कलर कैसा है, सॉरी हाइट कैसी है, ये आपको बताता है मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर मेंडल। What is the scientific name of human beings? मैंने अभी समझाया, Homo sapiens. See here H capital and then small s in the second half. अब क्वेश्चन है, the theory of chemical evolution of life was experimentally demonstrated by Oparin, Miller, Urey, Mendel and Darwin. So here this is the Miller and Urey. Genetics is the study of resemblance amongst individual, heredity, environment, differences amongst individual, heredity and variation. So what is heredity and variation? ये हमको genetics समझाता है। Now the next question, this question the answer will be given by now Arpit. Wings of a bird and wings of an insect. आपने होमोलोगस पढ़ा है, एनालोगस पढ़ा है, वेस्टिजियल पढ़ा है। होमोलोगस मींस which are looking same but different function. Analogous which are of different looking but the function is same. And vestigial organ, the organ which is present in the body or of no use. तो आपके सामने है ऑप्शन 3 and then 4th is both A and B.
तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन अर्पित? बर्ड्स का विंग एंड द विंग ऑफ एन इंसेक्ट. Homologous organs. Yes, very good. Heredity. हेरिडिटी मतलब होता है जो कैरेक्टर्स वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाते हैं. सो द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज द हेरिडिटी. मेंडेलियन फैक्टर, क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया है कि मेंडल ने क्या किया, सारे जीन्स को उसने ये चेक किया कि भाई हमारे में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं क्या. तो उन्होंने क्या निकाला, कैरेक्टर्स निकाला. तो हेरिडिटी यूनिट विच इनहेरिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज द मेंडेलियन फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 26. दिस क्वेश्चन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज योर होमवर्क. ये आपको कंप्लीट करके बताना है. आई हैव शोन द आंसर हियर ऑल्सो. ठीक, you give me the correct option of this. Here the answer is given, but मुझे इसका पूरा solution चाहिए कि ये कैसे होगा. Next question, question number 27. An example of homologous organs is our arm and a homologous. का कौन सा example हो सकता है? Our arm, dog, four leg. Our teeth, an elephant tusk. Potato and runners of grass. All the above. होमोलोगस अभी समझाया मैंने. I want anyone from the participants. खुशी, reply the answer of this question. Ma'am, all of the above. All of the above. Rashi, no beta, this is not correct. खुशी ने बोला all of the above. Anyone? Yes, Taru, that is D. अब मैं समझा देती हूँ. होमोलोगस का मतलब ये होता है कि मैंने अभी समझाया, जो देख, होमोलोगस मतलब सेम फंक्शन बट सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन इज डिफरेंट. तो अवर आर्म एंड डॉग फोर लेग. फोर लेग मतलब सामने के दो पैर डॉग के, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. हम भी वैसे बैठेंगे तो वैसे ही लगेंगे बट फंक्शन अलग है. अवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क. एलिफेंट के जो साइड से वाइट टीथ निकलता है जिसको हम एलिफेंट टस्क बोलते हैं. हमारा काम है खाने का, और एलिफेंट टस्क का काम होता है सिर्फ दिखाने का. वो कुछ नहीं कर सकते उससे. सेम पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास. ये भी जमीन के अंदर होते हैं, ये भी जमीन के अंदर होते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ग्रास को हम खा नहीं सकते, पोटैटो को हम खा सकते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ. राज, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कि इवोल्यूशनरी के केस में, मैंने ये क्वेश्चन शायद तुमको दिया भी है एग्जाम में. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राज, will be a bacterium. Rashi, which question? Please write the question number. Rashi, write the question number. Okay, so here option is a bacteria, a spider, a chimpanzee and a Chinese school boy. ठीक है, ओके ठीक है. मैं ये क्वेश्चन फिर से दिखाती हूँ. इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन. क्या हो सकता है इवोल्यूशनरी की केस में? चाइनीज बॉय, चिंपांजी, स्पाइडर और अ बैक्टीरियम.
राशि यू आर सेइंग चिंपांजी, ओके। और कोई? खुशी? आई एम वेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम राज। आई होप टुडे राज इज स्लीपिंग। He's not in class. He is in the class, but he is not replying. खुशी is also saying chimpanzee. See students, मैं बता देती हूँ, चिंपांजी में इवोल्यूशनरी चेंज आपको बाहर से कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक। आपको उसका डीएनए लेना पड़ेगा, इनसाइड चेंजेस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चिंपांजी एक बार हो चुका है। स्पाइडर में माइन्यूट चेंजेस आ सकता है जो कि नॉन रिकॉग्नाइजेबल है। लास्ट बैक्टीरिया में आए दिन चेंज आता है क्योंकि सिंगल सेल्यूलर है वो। बट दिस चाइनीज बॉय इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आवर एंसेस्टर्स केम फ्रॉम अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका में कुछ लोग रुक गए, फिर कुछ लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो कि रिप्रोड्यूस होते होते उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने लगे, ठीक है। तो किस हिसाब से चिंपांजी विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज चाइनीज स्कूल बॉय। और यही रीजन है कि आप इंडोनेशिया चले जाए, हाँ, वो चाइनीज बॉय को स्कूल बॉय इसीलिए बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए। आप स्कूल को मत ध्यान दो, स्कूल बॉय बोला, बॉय मतलब स्कूल जा रहा होगा, इसलिए कंफ्यूज करने को बोला। चाइनीज बॉय को देखो आप बस, ठीक है। सो एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? हाँ खुशी, वो हो सकता है, बट चिंपांजी में आपको जो भी चेंजेस दिखेगा बेटा, थैंक यू राशि, जो भी चेंजेस दिखेगा वो चेंज आपको जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट ह्यूमन बीइंग में कोई चेंज दिखता है फिनोटिपिकली, वो जल्दी रिफ्लेक्ट होता है अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह अपना माइग्रेशन किया हो। अगर आप कल को चले जाते हो, मैंने अभी आपको बताया चाइना चले जाते हैं और हम चाइना में ही जाके मैरिज कर लेते हैं, वहां के ही किसी मेल से, तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्रीड आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट डीएनए, कि किसका डोमिनेटिंग है और किसका कैरेक्टर रेसेसिव है, उस हिसाब से हमारा ब्रीड जो आगे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशनरी चेंज। ओके, what happened when Mendel crossed traits of a character in a pea plant? Yes, Naitik. मैम अगर उसकी जगह जो ऑप्शन है उसकी जगह एप्स दिया हुआ रहता तो हम लोग एप्स करते ना। हाँ, बट नैतिक एप्स नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चिंपांजी दिया हुआ है, तो वो नो मैम, अगर हाँ, जगह ही बोल रहा हूँ। किसकी जगह? चिंपांजी की जगह? या मैम स्कूल बॉय की जगह। स्कूल बॉय की जगह अगर एप्स दिए होते तो बेटा एप्स में ये होता है कि आखिर वो क्लोजली रिलेटेड टू चिंपांजी हुआ ना, सब तो बंदर ही हुए ना एक तरह से। यस मैम। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना पड़ता। आप ऑप्शन चिंपांजी की जगह कुछ और रख दीजिए, किसी बर्ड को डाल दीजिए, फिर आप स्कूल बॉय की जगह अगर चिंपांजी या एप्स रखते तो आप एप्स को बोल सकते थे, बट ऐसा क्वेश्चन में आता ही नहीं, ये ऑप्शन आता ही नहीं ऐसे। मगर मैम एनसीईआरटी में दिया था ना, इसके कारण मैं एक बार अपना डाउट क्लियर कर लिया। अभी तुम समझ गए कि मैं तुमको क्या बताना चाह रही थी कि यस मैम। ओके। सो दिस इज, मेंडल ने 2 ट्रेट लिए थे, दोनों ट्रेट डोमिनेटिंग ट्रेट थे फर्स्ट जनरेशन में।
who provided experimental evidences to support the theory of origin of life from inanimate matter. मिले एंड यूरे. मेले और यूरे ने क्या किया था, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट ही है जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. इन्होंने क्या किया था, मैं शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ. इन्होंने ना एक जार में वाटर लिया और उस वाटर को इन्होंने एक जगह पे रख दिया. रखने के बाद ये कम से कम 15 डेज उस वाटर को देखे नहीं, और वो वाटर क्या हुआ, जो रुका हुआ पानी रहता है वो पानी खराब होने लगता है. जब वो पानी खराब होने लगा तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गए. तो मिलर को तब समझ में आया कि इस दुनिया में जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया होगा वो हमारे वाटर से ही प्रोड्यूस हुआ होगा. फिर इसमें धीरे धीरे फ्यूजन हुआ और ये मल्टी सेलुलर में हुआ. तो सबसे पहला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ओरिजिन ऑफ लाइफ था, दैट इज द कोसरवेट. अभी हम कोसरवेट आगे पढ़ेंगे. तो कोसरवेट इज द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ. अब अगर नॉर्मल कोई पी प्लांट है, वो फ्लावर्स बियरिंग कलर्ड फ्लावर्स सडनली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाइट. कोई प्लांट है जो कि कलर दे रहा है और एकदम से वो कुछ सीजन के बाद व्हाइट आ जाए, सो दैट इज ड्यू टू द म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब सडन चेंज. ठीक. अब इसके बाद गार्डन टी के दो आपको स्ट्रेट्स बताने हैं. तो डॉर्फ एंड रिंकल्ड मैंने बता दिया है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये वो होता है जिसमें इवोल्यूशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिलेशन होता है. हम अपना एग्जांपल ले लें तो हमारा रिलेशन जो है वो एप्स से है, मंकीज से है, चिंपांजी से है. तो ये कहलाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब what will be the percentage of AB gametes produced by, आपके सामने ये गैमीट दिया हुआ है, इसका परसेंटेज क्या होगा, तो सब कुछ 25% में आएगा. ये आप करके देख सकते हो. नेक्स्ट, दिस 35 is again easy question. I am moving to the next part. हाँ, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो हम हमेशा ये जानते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर डीएनए. वो जो डीएनए होते हैं, उन डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम उनको डीएनए बोलते हैं, तो दे आर द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर. ये चार चीजें प्रेजेंट होती है. ठीक. तो ये चार चीजों में बेसिक जो चीज होती है, दैट इज द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेल्स आर कॉल्ड हीट्रोगैमेटिक. मेल्स को हीट्रोगैमेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल्स हैव XY क्रोमोसोम. इसका उल्टा क्वेश्चन आएगा, व्हाई फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, क्योंकि फीमेल्स के अंदर दोनों गैमीट्स, होमो मतलब सेम, दोनों XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब व्हाट इज द परसेंटेज पॉसिबिलिटी अ कपल ऑफ हैविंग डॉटर, 50%, क्योंकि मेल हैव द 50% X and Y क्रोमोसोम. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू ऑर्गेनिजम्स इन विच सेक्स डिटरमिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर. यू कैन राइट एनीथिंग, आप इसमें वो भी लिख सकते हो, अर्थवॉर्म, यहाँ पर टर्टल लिखा हुआ है, लिजार्ड. क्लोनिंग मैंने अभी पिछले सैंपल पेपर में तुमको दिया हुआ था. क्लोनिंग क्या होता है, तो जो क्लोनिंग है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट क्लोनिंग के अंदर ये क्लियर नहीं होता है कि जो बच्चे आएंगे आगे उसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट है जिसमें डिजीज है कि नहीं. क्लोनिंग आपको वो नहीं बताता है. तो क्लोनिंग सिर्फ आपको बाहर का स्ट्रक्चर देता है, फिनोटाइप वेरिएशन, नॉट अ जीनोटाइप वेरिएशन. So this is the 2 marks question. I am showing you this 2 marks question. You take a click or just see the this uploaded video. ठीक है. And students, this is the कोसरवेट. ये जो मैंने अभी समझाया था आपको कि पहला origin of life था कोसरवेट. Today you will get the science sample paper. आप लोगों को दो आपको गूगल लिंक मिलेगा. एक आपका टाइमिंग होगा 2 to 5:10 और दूसरा टाइम होगा 7 to 10:10. जिसने भी पेपर जिस टाइम पे करना है वो उसी टाइम पे अपलोड करेगा उसी गूगल फॉर्म में. आपका दूसरा
अगर आपने 2 बार अपलोड किया है तो हम फर्स्ट वाले को ही मानेंगे जो फर्स्ट होगा, हम सेकेंड वाले को नहीं मानेंगे, इसलिए बी रेडी विद द पेपर. So these are the 2 marks question. I am showing till 10. Okay. So best of luck for your sample paper of science. Good day.